انبیاء کو زمین پر بلا لیا، ہاتھوں پا میں نے اپنے اٹھایا ہے تعزیہ حسین کا اپنی اہدیت کا احساس بنا کر اب سے توحید کا وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے، وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے لوٹا، خریدا علی سے جو خدا نے لوٹا دیا شبیر کو، قدم قدم ہو جہاں زلزلہ زمین، سلام سے پہلے چار مسلم کی سمجھ بادی لکھوں درود پڑھنے محمد وآل محمد کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا خانے میں ہے، حضرت شبیر کا کنبازہ خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا خانے میں ہے، حرملا کا تیر جا کر تیرگی میں کھو گیا، حرملا کا تیر جا کر تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بے شیر کا جھلازہ خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا خانے میں ہے، درود پڑھ محمد وآل محمد۔ بنا حسین کے رب تک رسائی ناممکن، بنا حسین کے رب تک رسائی ناممکن، گواہی دیتی ہے خاک شفا مسلح پر، گواہی دیتی ہے خاک شفا مسلح پر۔ میں ملتمس ہوں نواز خان سلام اللہ جناب وجیہ الحسن صاحب سے آواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد
فضیلت کی خدا نے آل پیغمبر کے نام، ہر فضیلت کی خدا نے آل پیغمبر کے نام، جس پہ اترا تھا ستارہ، جس پہ اترا تھا ستارہ، عرش سے اس گھر کے نام، ہر فضیلت کی خدا نے آل پیغمبر کے نام، آنکھیں کر رہی ہے نام اکبر کا طواف، میں عریضہ لکھ رہا ہوں، میں عریضہ لکھ رہا ہوں، خالق اکبر بولتا ہوں، ایسا لگتا ہے مجھے سورہ کوثر ہو جیسے، سورہ کوثر ہو جیسے، ساقی کوثر فضیلت کی خدا نے آل پیغمبر کے نام، محشر حبیب کبریا سن لیجئے، ارے منقبت کی سب اذانیں، منقبت کی سب اذانیں ہے علی اکبر، میرے عشق کا یہی صلہ دو یا حسین، میرے عشق کا یہی صلہ دو یا حسین، خادم حرم مجھے بنا دو یا حسین، میری آپ کی آواز ہے، مولا کی بارگاہ تک نظر کرتا ہوں، میرے عشق کا یہی صلہ دو یا حسین، خادم حرم مجھے بنا دو یا حسین، جو بھی دیکھے وہ کہے محسن حرم، میں ازا حرم میں تو کرے نہ یہ کرم، میں ازا حرم میں تو کرے نہ یہ کرم، سوز سے بھرا ہوا گلا دو یا حسین، بنا دو یا حسین، میں غرم میں اور غرم میں سوں میں، مثل جابر آپ کی لغد کو دھوں میں، مثل جابر آپ کی لغد کو دھوں میں، اپنے در کی نوکری دلا دو یا حسین، حرم مجھے بنا دو یا حسین، میرے قلب و روح کو بھی چین چاہیے یا حسین کا صلہ حسین چاہیے، بھائی آپ کی مرضی، اس کو بطور مصائب سنیں یا بطور فضائل سنیں، ویسے ان اشعار کو سن کے آنکھوں میں اشک آ ہی جاتے ہیں، میرے
گروں میں نہ تھکوں میں اور نہ رکوں، نہ گروں میں نہ تھکوں میں اور نہ رکوں، ارے خون میرے جسم کا بہا دیا، علم مجھے بل سے اٹھانا حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھانا حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھانا حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھانا حسین، دی صدا لاش بسر آن کنے جامانو، اور چھٹکا پرچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، ایسے بھلائے ماں، اکبر تیری برچھی کا غم کیسے بھلائے ماں، اکبر تیری برچھی کا غم کیسے بھلائے ماں، ارے اس پر یہ ستم تجھ کو رو بھی نہیں پائے ماں، کلمہ طیب کلام پیش کرو، نظم لکھیے گا، وقار کلمہ طیب کلام پیش کرو، خلوص دل سے بسط احترام پیش کرو، خلوص دل سے بسط احترام پیش کرو، تمام اہل عزا کی سلامتی کے لیے، تمام اہل عزا کی سلامتی کے لیے حضور آل محمد سلام پیش کرو۔ میں متمس ہوں شاعر بیت جناب یاسر رضا یاسر صاحب سے، خاندان ابو طالب علیہ السلام پہ باوز بلند صلوات، اللہم صلی علی سلامتی کے لیے مجلس میں قبولیت کے لیے باوز بلند صلوات، مسجد رضی صاحب اور ان کے خانوادے اور ان کے متعلقین کی صحت و سلامتی کے لیے باوز بلند صلوات، بقول نهاية كريم محمد وآل محمد باردگان علیہ السلام، مولا کی جب سے نظر کرامات ہو گئی، مولا کی جب سے نظر کرامات ہو گئی، مقبول دو جہاں میں میری ذات ہو گئی، مولا کی جب سے نظر کرامات ہو گئی، مقبول دو جہاں میں میری ذات ہو گئی، اشعار کی
مدد سے کیا ان سے رابطہ، اشعار کی مدد سے کیا ان سے رابطہ، مولا سے بیٹھے بیٹھے میری بات ہو، مولا کی جب سے نظر کرامات ہو گئی، مقبول دو جہاں میں میری ذات ہو گئی، اور اشعار کی مدد سے کیا ان سے رابطہ، مولا سے بیٹھے بیٹھے میری بات ہو گئی، اور دیکھ منتبت تھی مگر نات، دیکھیے جو وصف میں نے شبیہ رسول کے، دیکھیے جو وصف میں نے شبیہ رسول کے، لکھنی تو منتبت تھی مگر نات ہو گئی، دودھ پڑی محمد والا، دعا مجھ کو خدائے علی اکبر، دیتا ہے دعا مجھ کو خدائے علی اکبر، جس وقت میں کرتا ہوں ثنائے علی اکبر، دیتا ہے دعا مجھ کو خدائے علی اکبر، جس وقت میں کرتا ہوں ثنائے علی اکبر، مل سکتی ہے انسان کو پیری میں جوانی، مل سکتی ہے انسان کو پیری میں جوانی، گر دل میں ہو موجود ملائے علی اکبر، زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین، میں زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، اور تسبیح و سجدہ گاہ کی صورت میں آج بھی، تسبیح و سجدہ گاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں۔ میں مطلب اس وقت خطیب اہل بیت علامہ سید ابو طالب صاحب کے طرف سے گزارش کروں گا کہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس حسین سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان ابو طالب علیہ السلام میں باوز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام، وحامل وحی والکلام، سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بابا زبل الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، بلند آواز سے جاگتے ہوئے صلوات پڑھیں آل محمد کی بارگاہ۔ 1447 ہجری کی آج 18 محرم ہے۔ اس سالانہ مجلس عرضہ سے آپ حضرات تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ جناب مسعود رضوی صاحب کی اپنی نسل میں تقریباً جہاں تک میرا حساب ہے
पांचवी पुश्त तो यकीनन होगी। हदीस का भी शेर है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मदाही में। तो इनकी अपनी नस्ल जो है वो सब जिक्र हुसैन करती है, जिक्र आले मोहम्मद करती है, और जिस तरह करती है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यानी औलाद से लेकर औलादों की औलाद तक सब कैसे जिक्र करते हैं। देखिए ये इस बात की दलील, और जाहिर है कि वक्त बहुत हो गया, 12 बज चुके हैं और आप मुसलसल कब से आए हुए हैं, यकीनन कल सबको ऑफिस भी जाना होगा, मगर ये इस बात की दलील है कि मुश्किल में आने वाले और होते हैं, मुश्किल कुशा के मानने वाले और होते हैं। आप यकीनन तैयार हैं, आप बेदार हैं, आप आमादा हैं। वजह यह है कि आले मोहम्मद किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, वक्त आले मोहम्मद का मोहताज है, आले मोहम्मद वक्त के मोहताज नहीं है। वजह ये हमने उसको इमाम नहीं माना कि जो ज़माने का मोहताज हो, बल्कि हमने उसे इमाम माना है ज़माना जिसका मोहताज होता है। तभी तो अनीस ने कहा था खुर्शीद फलक अक्स दुर्रे ताज अली है, खालिक के सिवा जो भी है मोहताज अली है। के सिवा जो भी है मोहताज अली है। कायनात में सिर्फ अली ऐसे है कि जो किसी चीज के मोहताज नहीं है, दुनिया में हर शय अली की मोहताज है। अभी तस्करा किया ना जनाब यासिर साहब ने जनाब अली अकबर का, दुनिया अली अकबर को समझना चाहती है, आज तक दुनिया छोटे शहजादे को नहीं समझ पाई। वजह उसकी है कि दुनिया को रिस्क अली असगर के सदके में मिल रहा है। अब कोई माने या ना माने मगर रिस्क अली असगर के सदके में है। मसाइब का जुमला मगर फजाइल में एक जुमले में सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि हुसैन ने जैसी चुल्लू में लहू आया, आसमान पे फेंकते तो क्या होता, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बरसात नहीं होती। जमीन पे फेंकते तो क्या होता, अनाज नहीं उगता। यानी कायनात में रिस्क अली इब्न अबी तालिब नहीं, अली का पोता अली असगर बांट रहा है। मुझे नहीं मालूम आपने छोटे बच्चों को देखा है या नहीं देखा है, यकीनन आपने अपने घरों में देखा होगा, छोटे बच्चे की मुट्ठी हमेशा बंद रहती है। नहीं समझे आधे सब, छोटे बच्चे की मुट्ठी हमेशा बंद रहती है। अब मुझे नहीं मालूम अली असगर की बंद मुट्ठी में क्या मौजूद था जो कायनात को रिस्क खिला रहा है। तो फिर जुमला कहने की इजाजत है, जिसे कायनात में 6 महीने की बंद मुट्ठी समझ नहीं आती, अब्दुल्ला कहां से समझ आएगा। कायनात में 6 महीने के अली की बदमुट्ठी समझ नहीं आ रही, उसे कायनात में यदुल्ला कहां से समझ आ सकता है। आयत पढ़ी है, 2 जुमले में तर्जुमा करके तमीद को खत्म करूं, जाहिर है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। जुमला ये आप सबका यकीनन 2 लफ्ज पे तकरीर करनी है, जज़ा और सजा। आले मोहम्मद से मोहब्बत करने की जज़ा क्या है, दुश्मनी करने की सजा क्या है, और इसी में तकरीर। और यहीं से जो है आप यकीनन बेदार है। नमाज बताई थी उस मिंबर से अली नहीं बताया था। नहीं समझे। जिस मिंबर से रोजा बताया था उस मिंबर से अली नहीं बताया था। अगर चाहते तो मदीने से या मक्के से मिंबर मंगवा लेते, मगर फिर दुनिया कहती भाई जिस मिंबर से नमाज बताई उसी मिंबर से अली बताया। अली बताया है अनोखा मिंबर बनवा कर, यानी मिंबर सिर्फ फजाइल अली के लिए होता है। जो मोहम्मद रात में ज्यादा इबादत कर ले, अल्लाह कहते हैं निस्फहु कलीला, है रसूल इबादत को घटा दो, मगर गर्मी में अली का हाथ बुलंद करके खड़े हुए हैं। अल्लाह जाने मुफस्सिर ने लिखा है, हर आपको किताब में मिलेगा, चाहे आप जो शियों को देखें सुन्नियों को देखें, हर किताब में आपको मिल जाएगा। हर तारीखदान ने फिक्रा लिखा है कि मोहम्मद ने इतना बुलंद किया कि मोहम्मद की बगल की सफेदी दिखाई देने लगी। वार मुअर्रिख, मोहम्मद के बगल की सफेदी दिखाई दे गई, अली के हाथ में हाथ दिखाई न दिया। अली के हाथ में, मोहम्मद के हाथ में अली का हाथ दिखाई न दिया। अब जुमला क्या है, अब ये मिंबर बना है अली के फजाइल के लिए। अब जब सरकार आएंगे इमाम ज़मान तो आके इसी मिंबर पे अली के फजाइल पढ़ेंगे, जो 15 को मौजूद थे उन्हें याद होगा। जो जुमला वहाँ रहेगा था मैं एक जुमले में जो है वो कह के और तब को खत्म कर देता हूँ। सरकार आएंगे इसी मिंबर पे, वो अली बताएंगे जो असल में अली है। मैं तो अभी आपको वो बता रहा हूँ जो जितना मेरी अक्ल में आया है। जवाहिरुल असरार किताब है, उसमें ये फिक्रा मौजूद है। और जुमला ये है कि आले मोहम्मद अक्ल से बालातर है, दिमाग में और दिल में 2 बालिश्त का फासला है। अली का कारनामा ये है, यहाँ पे आते नहीं है, यहाँ से जाते नहीं है।
यहाँ पे देखिए हमारी अक्लों से बालातर है जनाब अमीर। अब जुमला क्या है कि सरकार आएंगे इसी मिंबर पे और आने के बाद कहेंगे जो आदम को देखना चाहे मुझे, लेकिन मुझे जो पढ़ चुका मुझे दोबारा नहीं सुनाना, आप सबको यकीनन याद होगा 15 को मैंने क्या पढ़ा था। अब यानी सरकार आएंगे इस मिंबर पे, अली के फजाइल बयान करेंगे, वो अली कि जो असल में अली है। तो फिर जुमला कहने की इजाजत है, अगर मैं इस मिंबर पे बैठ के अपना तस्करा करना शुरू कर दूं, आप कहेंगे सरकार आपको हक किसने दिया है, ये मिंबर आपका मिंबर नहीं है। नहीं समझे, देखिए मैं जुमला कहूँगा नहीं जब तक आप समझ नहीं पाएगा। मैं बुजुर्गों से माजरत करते हुए मैं जवानों से मुखातिब हूँ। वैसे भी जिक्र अली में हर कोई जवानी होता है, जिक्र अली में बोलने का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, आला लफ्ज़ी से होता है। तो जिक्र अली में हर कोई जवान है। अब यानी कि सवाल ये, सरकार आएंगे इसी मिंबर पे, आने के बाद वो अली पढ़ेंगे जो असल में अली है। तो फिर जुमला कहने की इजाजत है, जो हमसे कहा जाता है भाई इस मिंबर में इतना अली अली क्यों करते हो, तो भाई फिर सामने की बात है, ये मिंबर मेरे बाप का मिंबर नहीं, ये मेहदी के बाप का मिंबर है। सामने की बात है, ये मिंबर मेरे बाप का नहीं, ये सरकार के बाप का मिंबर है। अब जब सरकार आएंगे तो आने के बाद कहेंगे भाई आप कहाँ से नबी के वारिस, आप तो बेटी के बेटे। मेहदी देखेंगे आसमान पे, आइए ईसा मेरे पीछे नमाज पढ़ के बताइए आप भी बेटी के बेटे हैं, मैं भी बेटी का बेटा हूँ। सामने की बात है, बस एक जुमला और तमीज़ खत्म से नमाज पढ़ा सकता हूँ। पिछले बरस पढ़ चुका, दोबारा नहीं सुनाना। मैं कैसे नमाज पढ़ा सकता हूँ, मैं वज़ीर बन के आया हूँ, अमीर बन के थोड़ी आया हूँ। थक के नहीं सुना, मैं वज़ीर बन के अमीर बन के थोड़ी। अब बस एक जुमला कहना होता है और तमीज़ को ख़त्म करना। यबना मरियम पढ़ा नहीं रहे, मेहदी पढ़ नहीं रहे। अब मुझे नहीं मालूम तारीख किसके जहनों में किसके जहनों में नहीं है। यबना मरियम पढ़ा नहीं रहे, मेहदी पढ़ नहीं रहे। मेहदी पढ़ा रहे हैं, यबना मरियम पढ़ नहीं रहे हैं, यानी पढ़ा नहीं रहे। सामने की बात है, यानी मेहदी पढ़ा रहे हैं और मरियम जो का बेटा जो है वो पढ़ रहा है। मरियम का बेटा पढ़ा नहीं रहा, मेहदी पढ़ नहीं रहे। तो फिर जुमला कहने की इजाजत है, जिस मोहम्मद मेहदी को, जिस इमाम को 12वें को नबी नहीं पढ़ा सकता, उसके पहले को दो कहाँ से पढ़ा सकते हैं। जो समझ गया उसे मेरा सलाम है। जब 12वें को उलुल अज़्म नबी नहीं पढ़ा रहा, पहले को दो कहाँ से पढ़ाएंगे। अभी जो जुमला रह गया था 15 मुहर्रम को, एक जुमला कह दूं, अली ने कहा था बहादुर खानदान की लड़की चाहिए, यानी अली लड़की दे नहीं रहे, अली लड़की ला रहे हैं। जब लाने में इतनी बहादुरी देखते हैं तो क्या देने में बहादुरी नहीं देखेंगे। और अली खैबर में नहीं है, मदीने में, मोहम्मद खैबर में। बाहर जाके देखा मैदान में गधे ही गधे दिखाई दे। यहूदियों के पास हुआ करते थे गधे, जनाब उज़ैर के पास भी चले। तो फिर जुमला कह सकते हैं, जिस मैदान में अली ना हो उस मैदान में गधे ही दिखाई देते हैं। जिस मैदान में अली ना हो उस मैदान में गधे ही दिखाई देते। बस तमीज़ खत्म हो गई, तफरीर आगाज हो गई। जुमला यहाँ छोड़ा था कि भाई इब्राहिम ने कहा परवरदिगार ये 5 नूर कौन है। कहा ये मैंने अपने नूर से मुखल किया और अपने नाम पे इनके नाम रखे। मैं महमूद ये मोहम्मद, आपका सुना होगा, मुझे एक जुमला सुना है, मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली, मैं फातिर समावात ये फातिमा ज़हरा का नूर है। इतने में कहा ये हसन का नूर है, ये हुसैन का नूर है। कहा ये बताइए ये जो इनके गिर्द 9 नूर है ये कौन है। कहा ये अली की नस्ल में से इमाम है, ये अली इब्न हुसैन है, ये मोहम्मद बाकिर है, ये जाफर सादिक है। सुनी हुई चीज़ है। एक जुमला पुकार कर कहा परवरदिगार ये सब तो ठीक है। अब कतरा किताब का नाम है, लिखने वाले आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबिर, जो हवाला देखना चाहे मुक़ादिमा से। अब जुमला का परवरदिगार ये बताते ये जो 71 नूर इनके गिर्द हैं ये कौन है। कहा ये अली के शिया हैं। अभी तो आयत पढ़ी थी। कहा ये अली के शिया है। कहा ये बताते इनकी पहचान क्या है। कब पहचान ये सीधे आज में अंगूठी पहनते होंगे, अली के दुश्मनों पे लानत करते होंगे, अली के दुश्मनों पे लानत करते होंगे, अली की विलायत के इकरार करते होंगे। अगला जुमला इब्राहिम ने कहा परवरदिगार अल्लाहुम्मा जअलनी शिय्यत अमीरुल मोमिनीन, ऐ परवरदिगार मुझे अली के शियों में से शिया बना दे। अल्लाह ने आयत को नाज़िल करके बताया व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम, इब्राहिम अली के शियों में से एक शिया था। ना जुमला तो मैं अब कहने जा रहा हूँ, दुनिया काफिर कहती है इब्राहिम तमन्ना करते हैं। दुनिया काफिर कहती है इब्राहिम तमन्ना करते हैं। शिया होता है इब्राहिम जैसा, तो अब जो इब्राहिम जैसा होगा उसे जज़ा मिलेगी और जो नहीं होगा उसे सजा मिलेगी। बस इसी में तकरीर थी और तकरीर खत्म हो गई। जैसा उसकी किताब में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ अली का तस्करा ना हो। ना 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 आप देखिए अभी जो दाद दे रहे बाबा कर रहे हैं वो तो दे रहे हैं, मगर जो हैरानी से देख रहे हैं उनके लिए 2 जुमले कह दूं। बात यह है कि 2 जगह
कैसी हैं जाली का तस्करा नहीं है। परवरदिगार तू अली से बड़ी मोहब्बत करता है, तू जो है वो 2 आयतों में और क्यों 2 सूरे में क्यों नहीं ली? कहा मुतालिब तुम भी काफिराना बातें करते हो, हमारे मोमिनीन को भी बहकाते हो, क्यों बार बार तेरे सवालात करते हो? तुमने सवाल किया कि अली का तस्करा 2 सूरों में क्यों नहीं है? कहा देखो पहली सूरह है सूरह मुनाफिकून, दूसरी सूरह है सूरह काफिरून। यानी फैसला कर दिया अल्लाह ने, ना ही काफिर का अली से ताल्लुक है, ना ही मुनाफिक का अली से ताल्लुक है, ना ही काफिर का अली से ताल्लुक है, ना ही मुनाफिक का अली से ताल्लुक है। अब देखिए यहाँ सारे बुजुर्ग मौजूद है, वो तायद करेंगे, और जिन्होंने सुना है उन्होंने यकीनन मुझसे बेहतर उलमा खुताबा से सुना होगा। आप सब तारीफ करते हैं अपने घर में पैदा हुए बच्चों की, क्या हसीन बच्चा पैदा हुआ हमारे घर। परवरदिगार तेरी कुदरत के क्या कहने, क्या हसीन बच्चा पैदा हुआ है। तो यानी अपने घर में पैदा हुए हुए बच्चों की तारीफ पे अल्लाह की तारीफ की जाती है। जो बच्चा खुद अल्लाह के घर में पैदा हुआ हो, जो बच्चा खुद अल्लाह के घर में पैदा हुआ हो, यानी मज़हर कुदरत ये है, मज़हर कुदरत ये है कि आप अल्लाह की मखलूक को देखते जाएं, तारीफ किए जाए, इबादत करते जाए। सरकार अल्लाह ने अली को काबे में क्यों पैदा किया था? तवज्जो जुमलात के हवाले उन्होंने फौरन बेसाख्ता कहा ताकि जब दिन की 5 वाजिब नमाजें काबे का रुख करके पढ़ो तुम्हें याद आए जो इसमें आया था, इसी की विलायत का सवाल किया जाएगा। जो इसमें आया था इसी की विलायत का सवाल किया जाएगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, मेरे ये जो मेरी याद है ये एक्सटर्नल डिस्क है या इंटरनल डिस्क है? अंदर नहीं है ना याद मेरी, जो है मेरे जिस्म से बाहर तो नहीं है। मेरे दिमाग में अली आ गए, शिरक हो गया? नहीं हुआ, नहीं समझे। काबे पे बुत थे, अली आ गए, बुत गिर गए, अली के आगे से तौहीद आ गई। दिमागों में अली को रखा जाए ताकि शिर्क दूर हो सके। पर यही तो जुमला है, जिसके दिलो दिमाग में अली ना हो वही मुशरिक होता है, जिसके दिलो दिमाग में अली ना हो वही मुशरिक होता है। ये हो गया, ये हो गई तमीज़ खत्म, अब हो रही है सज़ा। मगर अल्लाह जाने परवरदिगार मैं क्या करूँ, इसके मामलात कुछ और हैं। जो मज़ा या अली मदद कहने का है वो कोई और फिक्रा कहने का नहीं है। इसी को पलट लीजिए, जो मज़ा दुश्मन फातिमा पे लानत करने का है वो किसी और पे लानत का नहीं है। देखिए एक अपनी कैफियत होती है, हर किसी का अपना जो है वो जज्बा है, जज्बात है, हर किसी के अपने अपने मामलात है। अब ये है जज़ा। अब जज़ा क्या, सरकार बैठे हुए थे और तस्करा चल रहा था तिजारत का, इतने में आए और आने के बाद का तवज्जो, इतने में आए और आने के बाद का कि भाई तुम में से एक ने एक ऐसी दौलत कमाई है कि जो सबको बख्शवाएगा भी, सबको जन्नत भी लेकर जाएगा। का कौन है? कब मेरे को, तुम में से जो भी पहला शख्स चलता हुआ दौड़ते हुए गए। अब ये दौड़ना याद रखिएगा ताकि आपको आखिरी जुमला समझ में आए जो फरमाइश की शायद अली साहब, बस ये लफ्ज़ दौड़ना याद रखिए। देखिए हमारे यहाँ दौड़ना दुरुस्त है, भागना हराम है। दौड़ना दुरुस्त है, भागना हराम है। अब जो है वो अली सरकार बैठे हुए और सरकार एक ने ऐसी दौलत कमाई है कि हर कोई इससे हसद कर रहा है। सरकार ने कहा देखो जो दौलत हमारी राह में खर्च ना हो, जो माल हमारी राह में खर्च ना हो, वो माल नहीं बल्कि वबाल बन जाता है। अल्लाह हो यानी अगर अल्लाह ने दिया तो खर्च करो, फिर अपने पास रखे ना बैठे। अब क्या है, कहा भाई जो पहला आएगा बिल्कुल तुम में से, इतने में सरकार चले और चलने के बाद देखा कि भाई वो शख्स चलता हुआ है, तमाम लोग हैं। कहा भाई तुम्हें अपना मर्तबा मालूम ही नहीं है, तुम्हें मालूम है सरकार लेकर के इतने बंदे बख्शाओगे सबको जन्नत भी लेकर जाओगे। उसने कहा कैसे लेकर जाऊँगा ना, मैं तो दिहाड़ीदार मजदूर हूँ ना, मैं अभी तक वो दिहाड़ी पे गया, आज तो मेरी दिहाड़ी भी रह गई थी, मैं तो जा ही नहीं सका। कभी सरकार कह रहे चलो बात करता सरकार से, कपड़े फटे हुए इतने में चला, जैसे जाने लगा सरकार से कहा सरकार ये है, और ये कह रहे कि मैंने तो कोई दौलत नहीं कमाई। सरकार से उसने कहा बताओ क्या करते हो? कहा सरकार आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना, दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, मैं तो आज सुबह सुबह नौकरी में भी नहीं जा सका, मेरी जो है वो रोजी रह गई थी। तो सरकार ने कहा ये बताओ तुमने उठते ही पहला काम क्या किया? कहा सरकार जब मैं उठा तो मुझे याद आया कि भाई नौकरी का वक्त तो मुकम्मल हो चुका है, अब तो मैं जा नहीं सकता हूँ। मगर फिर उसके बाद सरकार ने कहा फिर क्या किया? कहा सरकार फिर मुझे हदीस याद आई, आपने फरमाया था, जुमला आ गया, कहा मुझे हदीस याद आई, आपने फरमाया था अन-नज़्रु इला वजहि अली ने बाधा। नहीं समझे, मैं अली के चेहरे को देखने चला गया। सरकार ने कहा जितने कदम तुमने अली तक जाने पर लिए हैं तुम इतने बंदे बख्शवाओगे भी, सबको जन्नत भी लेकर जाओगे। यानी अली के सिर्फ बलद हो गई। यकीनन अली अकबर के मसाइल पढ़ना भी आसान नहीं है, सुनना भी आसान नहीं है। वजह ये है जो हुसैन 70 जनाजों पे, लाशों पे बिल्कुल सीधा गए हैं,
दो लाशें ऐसे हैं, एक पे कमर थामे हुए गए थे, एक पे घुटनों के बल कोहनियों के बल गए थे। मौला आपकी सहाय को सलामत रखे। मासूम ने फरमाया हमारे मसाइब पे ऐसे क्रिया किया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे क्रिया करती है। तस्करा भी जवान का है ना, ज़्यादा जहमत नहीं देनी, तफसील नहीं सुनानी, 2-4 जुमले सुनिए। अली अकबर का यहाँ ताबूत मौजूद है, बस इसी को देखते जाइए, हुसैन की मजलूमियत पे रोते जाइए। आगे बढ़ के कहा उम्मे लैला ने मेरे वाली, मेरे वारिस, मेरे सरताज, रात में अक्सर एक साया आता है, अली अकबर को देख कर वापस चला जाता है। हुसैन ने कहा किसी को बताना नहीं, मैं रात में अक्सर देखने आता हूँ, कहीं अली अकबर को प्यास तो नहीं लगी है, कहीं अली अकबर को प्यास तो नहीं लगी है। अल्लाह जाने आशूर के रोज क्या होगा जब हुसैन से अली अकबर पानी मांगने आएंगे, अली अकबर को हुसैन पानी ना पिला सकेंगे। इतने में कहते हैं कहा बाबा जब में जाने की इजाजत दे दीजिए, वरना तारीख में पोशीदा रह जाएगा कि अली का पोता कैसे लड़ा था। का बेटा सिर्फ मेरा तो हक नहीं है, जिन 2 औरतों ने तुम्हें पाला है, एक तुम्हारी माँ उम्मे लैला, एक तुम्हारी पुपी ज़ैनब, उनसे इजाजत कौन लेगा। का बाबा आप मेरे साथ चलिए। का बेटा बाप को किस इम्तिहान में डाल रहे हो, चलो तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बस ये जुमला कहना था। कितने में जैसी चले, जाने के बाद का हुसैन ने ज़ैनब बस जब से माँ इस दुनिया से गई है, कभी हुसैन ने तुमसे कुछ मांगा है? कहा नहीं भैया, मैं तो इस हसरत में रह गई कि कब आप मुझसे कुछ मांगेंगे। रो कर कहा ज़ैनब आज एक चीज मांगू। कहा जी भैया मांगिए। कहा ज़ैनब आज अली अकबर को मरने जाने की इजाजत दे दो। अपनी आवाजों को बुलंद करें, मेरे सीने में ताकत नहीं है पढ़ने की। एक बार का आज अली अकबर को मरने जाने की इजाजत दे दो। बस ये जुमला कहना था कि ज़ैनब ने इजाजत दी। अली अकबर जाने लगे, मगर पुकार कर कहा हुसैन ने बेटा अभी तो फूफी ने इजाजत दी है ना, वो जो दरे खैमा पे बालों को बिखराए माँ बैठी हुई है, उससे इजाजत कौन लेगा। का बाबा आप मेरे साथ चलिए। का नहीं बेटा वो तुम्हारा इम्तिहान था, ये मेरा इम्तिहान है। भला दुनिया में कोई बाप उसकी ज़ौजा से कहता है कि अपने बेटे को मरने जाने की इजाजत दे दो। इतने में अली अकबर गए। जाने के बाद एक जुमला उम्मे लैला ने कहा मेरे चांद, अरे तुम्हारी आजान की आवाज सुनी थी, आज अपना चेहरा दिखा रहे हो। इतने में कहा मादर गिरामी मुझे आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। कहा बच्चे हुसैन पर कुर्बान कर दिए। मादर अब्बास भी 4 बच्चे कहेंगी। अरे पुकार कर ज़ैनब कहेंगी 2 बच्चे। आप मेरी दादी ज़हरा को क्या जवाब देंगी। रो कर का बेटा मैं सबसे आगे बढ़ के कहूंगी ए फातिमा ज़हरा, मैंने अपना 18 साल का जवान हुसैन पर कुर्बान कर दिया। अली अकबर जाने लगे। हुसैन ने कहा ठहर जाओ अली अकबर, अरे इस बूढ़े बाप से इजाजत कौन लेगा। अगला जुमला का अली अकबर मुझे मुड़ मुड़ के देखते जाना। का बाबा ये आप क्यों कहते हैं। का अली अकबर अगर तुम्हारा कोई 18 साल का जवान बेटा होता तो तुम्हें मालूम होता कि जवान बेटे को मरने भेजना कितना मुश्किल काम है। सीने पे हाथ मारिए, बड़ा ही कयामत का जुमला है। हुसैन ने संदूक मंगवाई जो अमामा मोहम्मद महराज पे पहन के गए थे। इतने में मोहम्मद की अबा पहनाई, मोहम्मद की कबा पहनाई, अमामे को बांधना शुरू किया, कहना शुरू किया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये जुमला कहने का लाशा ना उठाया जाएगा। ज़ैनब दुनिया का दस्तूर है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे से वसीयत करता है। करबला में दस्तूर उलट गया, जवान बेटे ने बूढ़े बाप से वसीयत की और कहा बाबा आप मेरी माँ के पर्दे का ख्याल रखिएगा। लो आखिरी 2 जुमले सबको छोड़ दिया। अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, हुसैन को कुछ दिखाई न दिया। मुझे माफ कीजिएगा जो मक्तल में जुमले मौजूद है मैं हवाले नहीं कर सकता। हुसैन कोनियों के बल, घुटनों के बल चलते हुए जाने लगे। एक शख्स से टकराए, उसने वही काम किया जो शिमर ने सकीना के साथ किया था। इतने में जैसे ही लाशा अली अकबर पे आए, फातिमा की आवाज है। अरे हुसैन घबराना नहीं, माँ तुम
تمہارے ساتھ ہے۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، پکار کر کہا یا علی مدد۔ برچھی کا پھل اکیلا نہ نکلا، علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے پھل کے ساتھ بھرا۔ آخری جملہ ایک بار در خیمہ پہ آئے، سب علی اکبر کے لاشے پہ گر گئے۔ سکینہ نے کہا بابا ارے ام لیلہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اب جو دیکھا ام لیلہ نے علی اکبر کا لہو اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا۔ محشر
اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں شاہ حسین، 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 ویر راجا
तेना तेवीर आजा अकबर तेना तेवीर आजा अकबर मर जावांगी तेना तेवीर आजा अकबर मर जावांगी तेना तेवीर आजा तेना तेवीर आजा अकबर मर जावांगी तेना तेवीर आजा ओ मिटिया अकबर होता ना हो जिटिया अकबर तेना तेवीर आजा अकबर मर जावांगी तेना तेवीर आजा तेना तेवीर आजा अकबर मर जावांगी तेना तेवीर आजा
सीनाए सिना से आवाज आ रही है, एक सीनाए सिना से आवाज आ रही है, एक सीनाए सिना से सीनाए सिना